हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। so so from today I'm going to start with a new lecture series on your CHSC physics. Okay, I will cover all the chapters and all the units of your CHSC physics. Okay, with the proper syllabus. Okay, with the proper syllabus I am going to discuss all the portions, okay, in details. Okay, don't worry about that. So this is the first class of your 11th class, okay, or you can say the plus 2 first year first class. Okay, so in your unit 1 the chapter start with your physical world, then your units and dimensions. Okay, so let me first introduce you to physical world. What do I mean by physics and how does it comes? Okay, I've already made the notes for you, okay, for your better convenience. Okay, so let me start discussing with that. Okay, so students see, अगर हमारे पास physical world means what? The outside, the physical things we are seeing outside us. Okay, उसका मतलब यही निकलता है। और आप जब बात करते हो साइंस, ओके, साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से कम आउट है। साइंटिया, दिस वन इज ए लैटिन वर्ड, ओके, व्हिच मीन्स टू नो। ओके, टू नो मीन्स जानने की जो इच्छा होती है उसको हम साइंटिया बोलते हैं। दैट इज इन लैटिन, दैट वर्ड इज कॉल्ड योर साइंटिया। ओके, नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, व्हाट डज इट सिग्निफाई व्हेन आई एम सेइंग फिजिक्स? ओके, so physics is the branch of science which deals with the study of nature and various natural phenomena. Okay, so generally physics क्या होता है? अगर हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, ओके, प्रकृति के ऊपर स्टडी करते हैं और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं, ओके, और you can say the physical world out around us, when we study about them, that's called the study of science. That branch of science is called your physics. Okay, hope you understand what do we mean by physics. Okay, जो हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान. Okay, so let me discuss some of the fundamental forces in nature generally we see around us. Okay, so let me first start with your gravitational force. So gravitational force is a mass centric force. If a certain body has mass, then it can apply the gravitational force on another mass. Okay, that is, yes, I have mentioned here, that is the virtue of their masses. The forces applied by the virtue of their masses. Okay, and then your electromagnetic force, and remember gravitational force is an attractive force. Gravitational force एक attractive force है. Okay, and the second one is your electromagnetic force. Electromagnetic force is the force between your charged particles. Okay, and if I will say the gravitational force, what is the strength of gravitational force, then you can say it is 10 to the power minus 39, and its range is up to infinite. Okay, I have mentioned, okay, here its range your infinite, and this is the strength of the gravitational force. Okay, and next you have electromagnetic force. Electromagnetic force is stronger than your gravitational force, and its strength is 10 to the power minus 2. Okay, and its range is infinite. Okay, and as I have mentioned, जैसे कि मैंने बोला, जो strong compared to your gravitational force, how many strongs? It is 10 to the power 36 times stronger than your gravitational force. Here I have mentioned it is 10 to the power 36 times stronger. Okay, and if I will talk about the strong nuclear forces, it is applied within the nucleus. Nucleus means, if I am talking about the nucleus, then you should know that the nuclear size is up to the order 10 to the power minus 15 meter. Okay, this is your nuclear size. Okay, so the force is of a certain range. That range is 10 to the power minus 15 meter. Yes, I have mentioned somewhere. Yes, I have mentioned here. This is a short range force. So it is a very strong nuclear forces. Okay, and its strength is 1. Okay, and it is how many times stronger than 10 to the power 38 times stronger than your nuclear gravitational forces. Okay,
And then comes your weak nuclear forces. Weak nuclear forces generally found out in subnuclear particles. Like this is a very short range force, and its order should be of the order 10 to the power minus 16 मीटर. ओके ओके, आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे. ओके, सो नेक्स्ट, this is all about your physical world. Okay, physical world means I have given you the introduction of physics, and then I have discussed about the fundamental forces in nature, that is your gravitational, electromagnetic, strong nuclear and weak nuclear. Okay, and yes, I have forgotten to say that weak nuclear forces generally found in the beta decay of nucleus. Okay, we see the weak nuclear forces. Then come to our chapter number 2, that is our units and measurements. Okay, so if I will talk about the physical quantities, what do we mean by physical quantities? अगर मैं physical quantity के बारे में बात कर रहा हूँ, तो physical quantity क्या है? Okay, the quantities which used to describe the laws of physics. अगर हम physics के बारे में पढ़ रहे हैं, okay, and the laws, अगर हम physics के बारे में पढ़ रहे हैं तो obviously उसके कुछ laws हो गए. ओके, उस लॉज के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए जो क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होते हैं, ओके, उसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिवाइडेड फिजिकल क्वांटिटीज इनटू योर टू टाइप्स, दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज which are independent of other physical quantities. Okay, and another is your derived quantities. Okay, this one is your fundamental quantity and this one is your derived quantities. Derived quantities, these quantities can be derived from your fundamental quantities. You see, in SI system, or you can say the international system of units, okay, we have 7 fundamental quantities. Okay, the scientists have found 7 fundamental quantities, okay, to describe the laws of physics. Okay, and those 7 fundamental quantities I have mentioned here. Okay, one is your length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. In chemistry, you have also studied the amount of substance, that is your mole. Okay, remember you have when you have taking some certain substance, you calculate that in terms of mole. Okay, so these are the 7 quantities, fundamental quantities we study in order to describe the laws of physics. Okay, and the derived quantities, we can derive them from the these 7 fundamental quantities. Okay, students, next we see the units. Okay, what do we mean by units? Okay, in physics generally the unit signifies your measurement of any physical quantities, involves comparison with a certain basic, arbitrary, chosen, internationally accepted reference standard called unit. Okay, याद याद कीजिए कि जब हम यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो यूनिट्स सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होंगे. ओके, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि इसका यूनिट यही है और इसका यूनिट यह है, ऐसे हम नहीं बात कर सकते. ओके, देन आपका आता है यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. ऑब्वियसली जो यूनिट्स हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, जनरली द सिंपल थिंग. एंड नेक्स्ट यू हैव yes, there are certain system of units. The first one is your CGS system. CGS system, C stands for your centimeter, G stands for your gram and S stands for your second. Okay, जैसे कि ये एक एब्रिविएशन है. एब्रिविएशन मीन्स समझते हैं आप, जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म, अगर आपका नाम हो है अगर सत्य प्रकाश राणा, तो वी कैन एब्रिविएट दैट एज SR. Okay, then, and you have also heard about SRK. SRK is what? The abbreviation of the name of the Shah Rukh Khan. Okay, that is called as your SRK. Okay, like this, we have used the system of units like this abbreviation. And FPS stand for your foot, pound, and second. That is, foot is for your length calculation, and P is for your weight or mass calculation, and S for your calculation of time. Okay, that is representing the fundamental quantities. And then MK system, this is the most accepted internationally systems. That is, your M start for your meter, K start for your kilogram, and S start for your second. Okay, and this one is the SI system of units. We also called it as your SI system of units. Okay, let's see what are the SI system of units. There are 7 fundamental and 2 supplementary units.
The SI system of units, in SI system of units, there are 7 fundamental and 2 supplementary. Okay, 7 fundamental and 2 supplementary units. Okay. When I am talking about the fundamental units, I have already mentioned in the nodes, okay, before, that is your length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. And you remember their symbol, length we can represent as your L, H, R, and meter. Meter is we denote the units as meter, and its symbol is M. Okay, and mass is m, and it is generally in SI system it's represented as your kilogram. Okay, so kg. Time, second. Electric current, ampere. Temperature, Kelvin. Amount of substance, mole. And luminous intensity is your candela. Okay, and its symbol is your CD. Okay, remember these 7 fundamental quantities, and moreover we have 2 supplementary units in SI system of units. So those are the plane angle and solid angle. Solid angle is represented by your steradian, and plane angle is represented by your radian. That is its unit. Okay, so this is all about your units. Okay, we will discuss more about this in your dimensions. When we are writing the dimension formula, I will discuss in details about this. Okay. Next, we have significant figures. Okay. So when we are talking about your significant figures, okay, the question always comes from this portion. Okay. तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और हम कहाँ पे इसे यूज करते हैं और क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं. So let's see what I have written here. That is, for a number which is the result of measurement, the digits that are known as reliable plus the first uncertain digits are known as your significant digits or significant figures. Okay, these are the rules. If you want to see those rules, okay, we will start with your question. If I'll do one question solve for you, then you can understand easily. Okay, what is these significant figures? Okay, if you want to look into the rules, then look into it. All the non-zero digits are significant. All the zero between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is. इसका मतलब यही है कि जब भी मैं नॉन जीरो डिजिट्स की बात कर रहा हूं एक नंबर में, तो वहां पे जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स हो गए वह सब सिग्निफिकेंट हो गए. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितना भी जीरो होगा बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स मीन्स द डिजिट्स एक्सेप्ट जीरो. ओके, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज. ओके, वो सब सिग्निफिकेंट हो गए. ये नहीं मैटर करता है कि कहां पे डेसिमल पॉइंट होगा. ओके, if number is less than 1, the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are significant. Like this, if I have a number 0.005302, okay, 0.005302, here आप देखिए ये जो 00 है जो कि लेफ्ट में है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेरा 5 है उसके लेफ्ट में है, तो दीज अंडरलाइंड जीरोस को मैं नॉन सिग्निफिकेंट बोल दूंगा. ओके, एंड इधर इस नंबर में मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, अगर मैं बोलूं तो मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 है, 5302. ओके, आई हैव मेंशन्ड हियर. यस, यस. So these are the rules, certain rules we used to study your significant figures. Okay, let me see what's wrong with this. Okay, yes, I am getting the data. Okay, so these are the rules. Okay, let's see. The terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. अगर मेरे पास एक नंबर है 24300 and it has the trailing zeros 00, okay, then I can say the 00, the trailing 00, that is your terminal 00, will be the non-significant digits, and 243 is the only significant figures in this number. Okay, so like this you can study this. Okay, let me do an example for you. This one is an example I have taken. Okay, the number of significant figures in the numbers 4 point, this is the point. Okay, okay, what's happening?
The notebook is not responding. Okay, sorry for that inconvenience. Okay, yes, this is 4.8000 into 10 to the power 4. The significant figures in this number is, see, I have the significant figures as 48000, and you see in the rules I have taken that if the multiplied 10 to the power 4 or 10 to the power n types, we neglect that, and that was not in the significant figures. Okay, so I have only 5 significant figures here. Okay, and when I am talking about this number 4800.50, okay, I am neglecting. Okay, this one is 50. Okay, yes, yes. So there are 480050. So there are 6 significant figures. Okay, I can neglect the terminal 0 here because here the digits are 6 significant digits. Okay, and next we have the dimensional analysis, the very important pioneer of your physics. जैसे कि हम बोलते हैं ना, जो फंडामेंटल्स होता है, ये फिजिक्स का भाई फंडामेंटल्स है। एवरी स्टेप पे अगर आप फिजिक्स में हायर स्टडीज करना चाहते हैं या फिर इसी 11 12 में आपका डायमेंशन फार्मूला बहुत ही काम आएगा। ओके, आगे चलकर सो इसे मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा। ओके, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा इसे समझने में, ये मेरे गारंटी है। ओके, अगर आपका जो भी डाउट रहे तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं, उसमें मेरा कोई भी कंप्लेन नहीं है। ओके, यस। सो आइए देखते हैं डायमेंशंस क्या है। Dimensions of any physical quantity are those powers which are raised on fundamental units to express the unit of that physical quantity. Okay, so basically हम लोग जब डायमेंशंस के बात करते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटीज के जो पावर्स होते हैं, जैसे कि हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम डायमेंशन फार्मूला जो जनरली होता है, तो हम इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके उनके जरिए, उनके पावर्स के जरिए हम उसे बताते हैं कि डायमेंशन क्या है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं आपके डायमेंशन फार्मूला ऑफ, अगर मुझे लिखना होगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ, ओके, यस, अगर मैं बोलूं कि मास का डायमेंशन फार्मूला क्या है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड वी रिप्रेजेंट मास एज दिस, so I can write the dimension formula of mass is m generally. Okay, isn't it? Yes. एंड जब अगर मैं लेंथ का बोलूं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यस यस, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जैसे कि मैं बोलूं लेंथ के बारे में, सो लेंथ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एल। एंड हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी मैं डायमेंशन लिखता हूँ एक फिजिकल क्वांटिटी का, तब उसे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिएगा। ओके, इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी डायमेंशन फार्मूला को। ओके, हम लोग करेंगे डायमेंशन फार्मूला के ऊपर पूरी तरीके से बात करेंगे। और यहाँ पे है डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सीलरेशन एक मेरा है फिजिकल क्वांटिटी, एंड एक्सीलरेशन की डायमेंशन फार्मूला मुझे बताइए आप लोग। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या है? अगर मैं डायमेंशन फार्मूला उसका लिख दूंगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा उसका कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर एक्सीलरेशन डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर एक्सीलरेशन क्या है मेरा, एक्सीलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, एक्सीलरेशन क्या है? योर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इजंट इट? वेलोसिटी अपॉन टाइम इज योर एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, and it will become your displacement upon time square, isn't it? टाइम स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। सो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा। एंड टाइम का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर क्या है लिखा हूं मैंने, टाइम का टी है और उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सो टी स्क्वायर, इजंट इट? सो ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज आप मार्क करिएगा कि यहाँ पर मास नहीं है, एम नहीं है। सो आई कैन राइट L1T-2 एज इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। वेरी सिंपल। आप डायमेंशन फार्मूला से भी इसका यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे आपको मालूम है? आप जानते हैं
इन एसआई सिस्टम अगर मैं बात करूं एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, आपका लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है कि नहीं, मीटर होता है। और आपका टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, एंड उसका स्क्वायर है। सो इसका हो जाएगा आपका मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, इजंट इट? यस, ये आपका हो गया एक्सीलरेशन का। मैंने आपके सामने ही एक एग्जांपल देके समझा दिया आपको कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एंड ये डायमेंशन फार्मूला लिखने से एक फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला। सो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा दूंगा आपका एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब देखिए, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशन। ये बात आप याद कर लीजिए कि आप ऐसे ही कोई फिजिकल क्वांटिटी दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, अगर उनका डायमेंशन सेम होगा, तभी जाके आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन में कोई बुराई नहीं। अगर एडेड और सब्ट्रैक्टेड करना है तो आपको उनका डायमेंशन पहले देखना होगा कि उनका डायमेंशन सेम है कि नहीं। ओके, समझ लीजिए आप। ओके, यस। अब देखिए, हम फोर्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप बताइए डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा। फोर्स का देखिए, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। फोर्स क्या है, फोर्स का जो फार्मूला है, फोर्स का क्या फार्मूला है, आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स मेरा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। एंड आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन अभी मैंने किया, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपन टाइम। एंड वेलोसिटी अपन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपन टाइम स्क्वायर। आज वेलोसिटी इज माई क्या, distance upon time, velocity is distance upon time, so distance upon time square. And you know that mass has dimension m, and distance has dimension l, and time has dimension t, and यहाँ पे स्क्वायर है, सो टी स्क्वायर लिख दिया। सो मेरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2। आप कभी भी ये मत भूलिएगा कि आपको पावर नहीं लिखना है, पावर हर हर जगह लिखना है आपको। अगर वन है पावर तो आप नहीं लिख सकते हैं, आपका मर्जी है कि आप लिखे या ना लिखे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकता है, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं m l t-2, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी का, अगर ये मेरा 2 के पावर 1 है तो इसे मैं 2 भी लिख सकता हूं। ओके, कोई भी इसमें दुविधा नहीं है। ओके, सो ये एक बात हो गई। ओके, तो मेरा क्या हो गया, तो मेरे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मेरा ये हो गया कि m1 l1 t-2 हो गया। ओके, तो आप बताएंगे सर आपने तो पहले से किया हो गया, तो आप मुझे बता दीजिए कि वार्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। चलिए बता देते हैं सामने ही सामने। वार्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग को पता है। वार्क का डेफिनेशन जब हम बोलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? हम यही तो लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आप लोग को अभी 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 मैंने निकाला कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t-2, यही तो निकाला मैंने। आप भी निकाल सकते हैं फोर्स का लिख के, फोर्स इज इक्वल टू योर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज योर वेलोसिटी अपन टाइम, एंड वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, सो डिस्प्लेस अपन टाइम स्क्वायर। वहां से आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज योर m1 l1 t-2। अगर आप इस सब को, इस ये सब फंडामेंटल चीज है, इसे आपका याद रह जाएगा। आप जब ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ये सब आपका मुंह में ही याद रह जाएगा। कोई ऐसे यहाँ पे ऐसा परेशानी नहीं है। ओके, डिस्प्लेसमेंट आप क्या क्या है, L1, l⁻1। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 l2 t-2। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर योर वर्क। एंड आप जानते हैं कि वर्क मेरा क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ही है। सो एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है एज वर्क के जो भी है। ओके, अब बोलेंगे सर आप और एक करा दीजिए, और एक डायमेंशनल फार्मूला निकाल दीजिए हमारे लिए। सो मैं और एक कर देता हूं जो कि है प्रेशर। प्रेशर के लिए चलो हम कर देते हैं। प्रेशर क्या है मेरा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो है। फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या है, प्रेशर। सो फोर्स का मेरा क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2, इजंट इट? यस। एंड मेरा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एल स्क्वायर। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर आप बात करेंगे, सो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका मेरा क्या हो जाएगा, m1 l
-1 T - 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। समझे कि नहीं, आप लोग को समझ में आता होगा अगर मैं जो बोल रहा हूं। यस, सो ये हो गया आपका प्रेशर का। ओके, सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, चलो उसे देख लेते हैं पहले, जो कि मेरा क्वेश्चन है, obtain the dimensional formula of universal gas constant। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों ही जगह पढ़े होंगे कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, आपको याद होगा कि मैं बात करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन मेरा क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू योर एनआरटी ही होता है ना। सो ये जो आर है, ये है मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसे मैं लिख सकता हूं पीवी अपन एनटी, इजंट इट। यहां से ही मैं आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकता हूं। यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम को मैं L3 लिख सकता हूं। एंड प्रेशर का मैंने यहीं पे ही निकाला, प्रेशर का क्या निकाला मैंने, आप लोग देखिएगा। ओके, व्हाट हैपनिंग टू योर नोटबुक, इट्स नॉट रेस्पॉन्डिंग वेल। ओके, यस यस, इट्स कमिंग नाउ। यस, सो मैंने जब यहाँ पे प्रेशर का निकाला, प्रेशर का मैंने क्या निकाला, M1 L-1 T-2, तो यहाँ पे वही लिखा दूंगा, यहाँ पे वही लिख दूंगा कि M1 L-1 T-2, यही तो निकाला। सो यहाँ पे लिख दीजिए M1 L-1 T-2 एंड यूरोपन में क्या है, N2, N क्या है, N क्या है मेरा, मोल तो ही है, मोल तो ही है। एंड रिमेंबर, मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या है, केल्विन। सो मिल गया मेरा M1 L2 T-2 योर मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, यही तो हो गया मेरा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ योर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप लोग चेक कर लीजिए, M1 L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, दिस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ योर व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, मैं आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन लाया हूं, जो कि है जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, ताजा ताजा क्वेश्चन है आपके लिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि डायमेंशन से आया हुआ है। चलो उसे ही सॉल्व कर लीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल, दिस वन इज एक्सपोनेंशियल। ओके, इन केस यू डोंट नो, दिस वन इज योर एक्सपोनेंशियल। ओके, exponential of your minus x square upon alpha kt, where x is the distance, k is the Boltzmann constant and t is the temperature and alpha beta are two constants. The dimension of beta, तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा है कि बीटा का डायमेंशन जो है वो निकाल दीजिए आप। ओके, तो आप लोग देखिए कि हम इसे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, ओके देखिए, मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन क्या दिया है, उसे पहले आप लिख दीजिएगा। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या दीजिए, क्या दिया हुआ है, फोर्स का एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है F इज इक्वल टू योर अल्फा बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। आप लोगों को पता होगा कि एक्सपोनेंशियल टर्म का जो डायमेंशन होता है वो ऑलवेज डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल अगर मैं लिख देता हूँ e⁻x, तो इसका डायमेंशन में क्या लिखूंगा, जीरो। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T0, डायमेंशन तो जीरो नहीं लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं M0 L0 T0। ओके, वैसे ही इस एक्सपोनेंशियल टर्म का मैं डायमेंशन लिख दूंगा, डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन क्या लिख दूंगा, M0 L0 T0, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल टर्म मेरा क्या है इधर, माइनस एक्स स्क्वायर अपन अल्फा के टी, इजंट इट। यस, देन आपका डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, जे आज मेरा अल्फा इज अपन द डिनोमिनेटर, सो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज मस्ट बी इक्वल टू योर डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपन के टी, इजंट इट। देखिए हमारा यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपन केटी के साथ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपन केटी। सो केटी जो है आप अगर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में या फिर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, आप लोग
पढ़े होंगे कि जब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं या हमारे आइडियल गैस के एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तब हम लिखते हैं केटी। केटी जो है मेरा क्या है, एनर्जी का ही एक यूनिट से। ओके, एनर्जी को हम केटी के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो केटी का जो डायमेंशन निकल के आता है वो एनर्जी का डायमेंशन के साथ इक्वल होता है। सो मेरा एनर्जी के डायमेंशन क्या है, m1l2t-2। सो केटी का डायमेंशन ए हो गया एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा इस स्टेप से इधर आ जाइए। सो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू योर व्हाट, m0l0t0 अपॉन m0l0t0। m0l0t0 यहाँ पे मेरा जो एक्स स्क्वायर था, सो एक्स स्क्वायर मीन्स कौन, एल। सो एल स्क्वायर हो जाएगा इधर, एल स्क्वायर मीन्स व्हाट, m0 l2t0, isn't it? and your अपन में, योर डिनोमिनेटर में यहाँ पे केटी था। केटी का मतलब मेरा क्या है, केटी का मतलब क्या है, m1l2t-2, दैट इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं ना आप? ओके, सो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करिएगा तो m जो 1 का जो पावर है वो अगर ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा m पावर -1 and l0 as l2 2, so both are having the same power, so getting cancelled, so 0 t2। ओके, अब जब हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ की बात करते हैं, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अल्फा बीटा है एंड एक्सपोनेंशियल टर्म का डायमेंशन लेस है, तो मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा। वही तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ अल्फा। ओके, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, let me wait for few minutes. Yes, it's thank god it's responding again. Yes, sorry for the inconvenience students. Okay, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं। सो एफ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा होगा। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा निकालने के लिए। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स आप लोग को पता है कि क्या है, m1l1t-2, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा आप यही इक्वेशन से निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, दैट इज योर m-1 l0t2 रख लीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो m2l1t-4 निकल के आएगा। ये हो जाएगा आपके क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ योर बीटा। आंसर आपको मिल गया क्या, ये हो गया आपका आंसर। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके इस यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर। ओके, आने वाले क्लासेस में, आने वाले क्लास मतलब मैं कल के क्लास में बता दूंगा, जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करा दूंगा, सब क्वेश्चन एससी वर्मा से कराऊंगा, जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, सभी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बारी बारी कैसे समझाएंगे। ओके, कोई भी हमें जल्दी नहीं है। फिजिक्स जो है, स्टडी ऑफ जो नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना है, एक काफी एनालिटिकल सब्जेक्ट है। आपको एनालिटिक थिंकिंग करना होगा। ओके, मतलब आपको फिजिक्स को आप जितना सोचेंगे, फिजिक्स के बारे में जितना सोचेंगे आपको उतना ही अच्छा लगता जाएगा। आप उतना ही जितना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में ये हेल्पफुल होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपके सीएचएससी का। अगर आपका क्वेश्चंस पे आता है तो डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पूछेगा। मैं जो आने वाले क्लासेस है, कल के क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा कि आपके जो सीएचएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे भी मैं करा दूंगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, आप लोग जो मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, आप लोग को बस पेशेंस से देखना है, पूरे 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 वीडियो को देखना है, और जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, यही आप लोगों का काम है। और नोट बनाते चलिएगा मेरे साथ, आप लोग एक कॉपी लीजिएगा और बैठ के नोट बनाते चलिएगा। जहां पे भी आपको डाउट हो वहां पे वीडियो पॉज करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, कि सर मेरा यहाँ पे डाउट है और आप मुझे समझा दीजिए। ओके, यही इतना सा ही बात करना है आपको। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, सो आप लोग जो भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि बाकी बच्चों को भी फायदा हो। ओके, हम यहाँ पे
अच्छा फिजिक्स बनने के लिए आए हुए हैं। ओके, तो सब लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, यही मेरा एम है। ओके, इसीलिए मैं हमारे उड़ीसा के जितने भी बच्चे हैं उन सब से अपील करता हूँ, आप लोग देखिएगा, जो भी डाउट होगा आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ओके, इतना ही मेरे आप लोग से अपील है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। ओके, गुड बाय, हरे कृष्णा एवरीवन, गुड।